کہانی کا عنوان ہے نئے سال کا تحفہ۔ مصنفہ ہیں الطاف فاطمہ۔ بوڑھے اور ہزاروں سال پرانے چندا ماموں شاید نئے سال کی اس رات کو کبھی نہ بھولیں گے جب انہوں نے ایک بہت ہی انوکھا تماشا دیکھا۔ ہاں بھائی، کم سے کم وہ تماشا چندا ماموں کے لیے تو بالکل ہی نیا تھا، اس لیے کہ ہر نئے سال کی رات تو پورا چاند نہیں نکلا کرتا نا، اور جو کبھی نکلا بھی ہو تو کبھی کبھی اس پر بادل بھی چھا جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ رات تو پورے 10 سال بعد آئی، جب دیس دیس کی پریاں اپنے اپنے دیس کی طرف سے نئے سال کے تحفے لینے جاتی ہیں۔ اور پھر صاف بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کبھی دیکھا بھی ہوگا تو وہ اتنی باتیں دیکھا کرتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہ رہا ہوگا۔ ہاں تو بھائی، وہ نئے سال کی پہلی رات تھی اور چاند کی 14 تاریخ۔ ٹھنڈی اور سنسان رات میں نیلے آسمان پر دھیرے دھیرے چاند کہیں اوپر سے اترا چلا آ رہا تھا، کبھی کبھی ٹھٹک کر نیچے کو جھانک بھی لیتا تھا۔ چپ چاپ رات میں دریاؤں اور نیلی جھیلوں سے سجی ہوئی، پھولوں سے لدی ہوئی وادیوں والی یہ ہری بھری دنیا کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اور یہی وقت تھا جب دیس دیس کی پریاں سچ بن کر نئے سال سے تحفے لینے ہر طرف سے نکلیں۔ آسمان کے نیچے اور وادیوں کے اوپر رنگ رنگ کی تیتریاں سی اڑتی چلی آ رہی تھیں۔ ارے ارے، تیتریاں ہی تیتریاں! چاند نے خوش ہو کر نیچے دیکھا، پر یہ تو رات کو نکلا نہیں کرتی، ضرور یہ پریاں ہی ہوں گی۔ چندا ماموں نے ٹھٹک کر سوچا اور تھوڑا سا نیچے کو اور کھسک آئے۔ سچ، وہ پریاں ہی تو تھیں، دیس دیس کے لباس پہنے چھن من کرتی اوپر اور اوپر کی طرف چلی جا رہی تھی۔ اتنی سردی میں اور رات گئے کہاں چلی جا رہی ہیں؟ ضرور کوئی بات ہے، چاند نے سوچا اور چپکے سے بادل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی آڑ میں ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ سب کو دیکھ رہا تھا اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی گڑیوں کے برابر پریاں ایک ہلکے کی شکل میں اڑ رہی تھیں۔ الٹی طرف کو جو پری تھی وہ جاپانی کپڑے پہنے ہوئے تھی اور ویسے ہی بال بنا رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک نازک سا پنکھا تھا۔ اس سے تھوڑی دور چینیوں کی سی چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور ویسے ہی لباس والی پری تھی۔ وہ اور جاپانی پری ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی۔ چینی پری کے برابر گل اناری رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے پاکستانی پری تھی۔ اس کے بال کالے تھے اور رنگ بالکل سونے جیسا تھا۔ اس کے بالکل پاس ماتھے پر بندیا لگائے کالے بالوں اور سونے جیسی رنگت والی پری تھی۔ چاند نے سوچا ضرور یہ پری بھارت دیش کی ہے۔ بھارت کی پری کے برابر ایک اور پری تھی جس کی
सूरत शक्ल जापानी और चीनी परियों जैसी थी। वो गहरे जर्द रंग का लिबास पहने हुए थी और एक ढीली आस्तीनों वाला कोट भी पहना हुआ था। उसने अपने जूड़े में फूल सजा रखे थे। ओहो, ये किस देश की परी है? चंदा मामू ने एक जरा की जरा सोचा और उनको फौरन याद आ गया। ऐसे कपड़े पहने हुए प्यारी प्यारी लड़कियां तो बर्मा के शहर रंगून में दिखती हैं। और फिर इस परी के बाद मिलती जुलती शक्लों की बहुत सी परियां बड़ी प्यारी फिराकें पहने थीं। उनके बाल सुनहरे, भूरे और सुर्ख थे। उनके बराबर पर जो परी थी वो तो बस बिल्कुल ही परी थी। कोहकाफ से कुछ फासले पर चिट्टे और चौड़े से मुंह वाली एक गुड़िया सी सफेद कोट और पजामे के अलावा वो एक वैसी ही सफेद टोपी पहने हुई थी। उसको देखकर चंदा मामू ने रह रह कर याद किया कि ऐसे कपड़े कहाँ के लोग पहनते हैं, लेकिन उनको याद ही ना आया और वो इस ख्याल में ऐसा खोए कि उसके पास पास उड़ने वाली परियों के लिबास भी ना देख पाए। अब परियों और चांद में थोड़ा फासला रह गया था। कितनी प्यारी और भोली भाली हैं ये परियां। ऐसा लगता है कि आज दुनिया भर की नन्ही मुन्नी लड़कियां अपनी गुड़ियों की अलमारियां बंद करना भूल गई हैं और सारी गुड़ियां चांदनी रात की सैर को निकल पड़ी हैं। चांद ने सोचा, पर एक बात थी, वो सारी परियां रूठी रूठी थीं, न हंस रही थीं और ना ही आपस में बोल रही थीं। सबके मुंह फूले हुए और लटके लटके हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सबने आपस में कुट्टी कर रखी हो। भाई, ये कैसी परियां हैं? चंदा मामू दिल ही दिल में हैरान थे। चंदा मामू को इन परियों की रूठी रूठी सूरतें और लड़ाई देखकर बड़ा मजा आ रहा था और अब उनको भी मजाक की सूझी। धीरे धीरे वो बादल के एक बिल्कुल काले टुकड़े के पीछे हो गए और हर तरफ घुप अंधेरा होते ही परियां एक दूसरे के करीब खिसक आईं। ए बहन, जरा मेरा हाथ पकड़ लेना, एक फिराक वाली परी ने काली परी से कहा। चीनी परी भी जापानी परी के बिल्कुल पास आ गई थी। बाकी की सब परियों का डर के मारे बुरा हाल था। पाकिस्तानी और भारतीय परी ने रोना भी शुरू कर दिया। या अल्लाह, ये चांद कहाँ जा छुपा? न जाने कौन सी परी रोती हुई आवाज में बोली, मैं तो कहीं भी नहीं गया, बिल्कुल तुम्हारे पास तो हूँ। बादल के पीछे से चंदा मामू ने झांका और भारी भारी आवाज में बोले, शुक्र है कि चांद हमारे पास है। एक परी बोली। क्यों, क्या बात है? चंदा मामू ने पूछा। कुछ नहीं, डर लग रहा था। चंदा मामू बोले, तो ये तुम आधी रात को निकल क्यों पड़ी हो? और मैंने सुना है कि परियां डरा नहीं करती। भाई पता नहीं क्यों, हमें तो डर लग रहा है, परियों ने जवाब दिया। अच्छे चंदा मामू, अब सामने आ जाइए ना। चंदा मामू ने जवाब दिया, मैं इस शर्त पर सामने आऊंगा कि तुम पहले ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो, और दूसरी बात ये कि उनकी बात पूरी होने से पहले ही सारी परियां बोल उठीं, हम दुनिया की छत यानी तिब्बत के सबसे ऊंचे बर्फ के तौदे की तरफ जा रही हैं। अरे इस वक्त जनवरी की पहली रात को इतनी सर्दी में वहां जा रही हो? चंदा मामू की समझ में कुछ न आया। एक छोटी सी परी ने आंखें झपका कर कहा, भाई हाँ, इस वक्त तो हम नए साल के सामने जाकर नाचते हैं और फिर वो हम में से हर एक को उसके देश के लिए तोहफे देता है। एक और तेज सी परी ने मटक कर कहा, भाई चंदा मामू, अब दूसरी बात भी पूछ लीजिए, जल्दी से सामने आ जाइए।
दूसरी बात ये बताओ कि ये समोर वाली परी कौन है? अरे इतनी सी बात, ये तो लीफ लैंड की परी है। आप इसको कीमोपरी कह सकते हैं। बस अब तो निकल आइए। लो भाई निकल आया। और चंदा मामू झट से सामने आ गए और फिर चांद की किरणों के साथ परियां तिब्बत के सबसे ऊंचे बर्फ के तौदे पर पहुंची। बर्फ की ये दुनिया कितनी खामोश और मुकद्दस थी। ऊपर नीला आसमान था, नीचे दूधिया शीशे की सी एक दुनिया थी जिसमें चांद तारों के अक्स से अजीब अजीब रंग नजर आ रहे थे। इस ग्लेशियर के बीचों बीच एक शमा जल रही थी जिससे मोम की एक एक बूंद पिघलती आती और फिर न जाने किधर चली जाती। परियों ने चुपके से कहा, ये देखो, इस शम्मा का नाम ज़माना है और इसमें हर वक्त एक एक कतरा टपक रहा है और इसी शम्मा की लौ में से नया साल निकलेगा। ग्लेशियर के पास जाकर परियों ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर चलती हुई उस शम्मा के चारों तरफ खड़ी होकर उसके सामने झुकी और छम छम नाचना शुरू कर दिया। ये नाच इतना अनोखा और इतना प्यारा था कि चांद ने इससे ज्यादा खूबसूरत चीज कभी न देखी थी। ठीक 12 बजे परियां एक बार फिर शम्मा के आगे झुकी और फिर बड़ी देर गुजर गई मगर नया साल नजर न आया। परियों ने एक बार फिर नाचना शुरू किया। बर्फीली जमीन पर नाचते नाचते उनके पैर नीले पड़ गए और सुन्न हो गए। अब वो गिरने को थीं कि शम्मा की लौ थरथराई और उसके बीच में से एक बीमार और उदास बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता निकला। अरे हाँ, ये नए साल को क्या हुआ? सब परियों के मुंह से निकला और उसके सामने झुकी। जलती हुई लौ के बीच में बूढ़ा और बीमार साल चुपचाप उनको घूरता रहा और फिर गुस्से से थरथराती आवाज में बोला, सीधी हो जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लाया। आज रात मैं तुमको कोई तोहफा नहीं दूंगा। मालूम है क्यों? परियों ने बगैर जवाब दिए उसकी तरफ देखा जैसे कहती हूँ, तुम ही बताओ कि क्यों। और नया साल गरज कर बोला, मैं तुमको हर साल खुशियाँ, अनाज, खुशहाली देता हूँ कि तुम दुनिया वालों को हंसना और खुश रहना सिखाओ और तुम उसके बदले उनको गुस्सा और नफरत सिखाती हो, इनमें बेचैनी फैलाती हो, इनको आपस में लड़वाती हो। तुम्हारी इन हरकतों से दुनिया उदास होती चली जा रही है। तो उसमें हमारा क्या कसूर? दुनिया वाले खुद ही लड़ाकू हैं, उनको लड़ना भिड़ना अच्छा लगता है। परियों ने आहिस्ता से कहा और नया साल और भी जोर से गरज कर बोला, तुम झूठ कहती हो। दुनिया वालों की लड़ाई और तबाही नहीं पसंद, वो अमन और खुशहाली चाहते हैं। तुमको दिखाऊं? ये कहकर नए साल ने अपना चांदी का मुन्ना सा डंडा घुमाया और सामने दुनिया एक बड़े से गोले की शक्ल में घूमती नजर आने लगी। वो देखो, सामने मुल्क का किसान अपनी तैयार फसलों को किस प्यार से देख रहा है। वो अपनी फसलों के लिए अमन चाहता है और दुनिया के कोने पर जगह जगह तैयार फसलों के लहलहाते खेत नजर आने लगे। और वो देखो, माँ अपने बच्चों को लोरियां देकर सुला रही है। वो अपने बच्चों की खातिर अमन चाहती हैं। दुनिया को लेके चप्पे चप्पे पर माँ अपनी बच्चों को गोद में लिए प्यारी प्यारी लोरियां दे रही हैं। और देखो, उस्ताद किन किन अरमानों से अपने शागिर्दों को कल के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया के गोले पर हर जगह क्लासों में बैठे हुए प्यारे प्यारे बच्चे उनको बड़ी मेहनत से पढ़ाते हुए उस्ताद नजर आ रहे थे। ये उस्ताद कल के इंसानों की खातिर अमन चाहते हैं। इंसान लड़ना भिड़ना नहीं चाहते। ये तुम हो जो खुद भी आपस में लड़ती हो और इनकी बेखबरी में अपनी नाजुक नाजुक सी चांद की छड़ियां घुमा कर इनके दिलों में नफरत और झगड़े डालती हो। चली जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं। परियों ने एक जुबान होकर कहा,
پھر بھی کوئی تحفہ تو دیجیے، خالی ہاتھ جا کر ہم انسانوں کو کیا دیں گے؟ یہ سن کر نئے سال کا سر جھک گیا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر کہا، میں انسانوں کی فکر میں اتنا بوڑھا اور بیمار نظر آ رہا ہوں، میرے پاس ان کے لیے صرف ایک تحفہ ہے، وہ تم لے جاؤ، اور وہ ہے محبت۔ اس سال تمہارا یہی کام ہے کہ تم دنیا والوں کو محبت کرنا سکھا دو اور دنیا کو تباہی سے بچا لو۔ یہ عجب تماشا دیکھ کر چندا ماموں کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ سب سے اونچے برف کے تودے کے پیچھے جا چھپے، اور پھر انہوں نے دور سے دیکھا کہ دیس دیس کی پریاں اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نیچے کی طرف جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ کہانی کا اختتام ہوا۔